All right. So once again, welcome to HSR High Tech Solutions. Today we are going to discuss about like full stack development. So how a full stack developer learn new things and how you guys can like understand the basics which required for full stack development. So we are going to discuss today about like the basics of full stack development, what skills we need to be a full stack developer, or what are the major things which we need to understand before becoming uh, a full stack developer, like how your journey is going to be, what things you will have to learn, and how you guys will have to take a look in the perspective of a full stack developer. So first of all, we will understand like what is BEB. Before entering into the entire world, we will understand a small particle. Just like in chemistry, you were studying about atoms first, right? Then you have moved forward for compounds and other structures. So in the similar pattern, before we are entering into the website development, we must have to understand the BEB, like how BEB works. Then only we will be able to understand what is the website and how you guys can develop or design a website and you guys can make an existence in presence of like million and billions of websites. There is a fact that like thousands of websites become live each and every day. New websites, I'm not talking about like the older websites, I'm talking about new websites which come into the search and console. Okay, so we will have to understand what is BEB. So the simple full form of www, that is World Wide Web. This is commonly known as web, and it is nothing but just an information system where one person, or you can say one system, share their resources with others. Okay, either it might be a document, or it might be a photo, or it might be any kind of file, might be a source code, it might be anything. No one can predict this thing like what it is. So whatever things you share over internet, whatever information you share over this system, that is considered as web resource. Okay, so how you will identify like which person or which system is sharing the resource? In similar pattern, you are living in a society or you are living in a hostel, so you must be having a unique address for each and every stuff, right? Wherever you are staying, there must be an address, there must be a house number. If you are staying in hotels or in like hostels, then there will be hostel name as well as your room number by which you will be identified, right? So in similar pattern, in website development, or you can say in web, there are millions and billions of systems present online, right? So how one can identify like from which resource or from which source a particular document or a particular file is coming up from? Okay, so for that there is a unique code that is considered as uniform resource locator. As its full form denote, like this is a uniform means there must be a pattern for their structure. Okay, resource is nothing but whatever things people are sharing over the web. All right, and locators is just to identify the place from which place this particular stuff is coming up from. Okay, so in this manner, like URL has been formed, and you might have seen so many URLs till now. You must have visited Google, you must have visited Amazon, Flipkart. So you have gone through almost 100 plus websites and you must have come across URLs. And you have seen that their pattern are almost similar, that start with either HTTP or either HTTPS. Then you will be seeing that there is a colon, then double slash, and in some website you might be seeing www dot. In some website you might not be seeing that stuff, and then the domain name. That is the URL which you come across on a daily basis. We will understand this structure, like what it stands for and why this pattern has been made. So we will understand it later. So we will have to just remember that each and every system present online has a URL which is serving resources publicly.
All right. If you are coming online, you are not sharing any resources, then you do not need any URL. You just need an IP address. And IP address is nothing, just similar to your Aadhaar card or PAN card. If you are an Indian citizen, then you must have an identification number, that is Aadhaar number, right? And you are being represented as a citizen of India by PAN card or Aadhaar card or your passport, and there must consist a unique ID, right? In similar pattern, each and every system over the internet has a unique IP address, and this IP address is being allocated by your internet service provider, that is also called ISP. Okay, and ISP is needed to like make all the transactions over the web. In similar pattern, if you are using a banking of any bank, okay, so you have got a account number, and through that account number all of your transactions happens, right? In similar pattern, all the transactions made over the web, either you are sending a message to your friend using WhatsApp, or you are using Telegram or any messenger. All right, so there is a trace of IP address in each and everything. If there is not a trace of user IP address, then there must be a user sign up or login system, that is also called user management system, so that like people can manage users in a better way. All right, so these URLs is nothing, just to identify a particular uh, resource, main source, like from which origin this one is coming up from, and these links are being interlinked over web, that is called hyperlink. You must have seen like a spider, then you must have come across spider web, and if you will identify there, like zoom in the spider web, you will be seeing there are nodes, right? In similar pattern, people are connected over the internet, and each node you will see like from where two pathways are crossing, similar like roads connections, you will be seeing you are connected with other people in similar manner if you are online. Okay, and all these information are accessible over the internet, and the whole system is considered as internet. Whatever things is coming up, if you have connected via your mobile phone or via your laptop, each and every device is a part of world wide web. Okay, then coming for like what is website, we have understand what is web. Web is nothing but a, like you can say, networks of computers which is present across the globe, not only uh, on earth, or you can say not only on your system only. This is also available and connected via satellites, so satellite is also a part of this world wide web. Okay, so now coming to the what is website. Website is nothing, just a collection of web pages that is related to, might be a particular business, that might be related to any users information, okay, or a social media platform, anything it can be. So these are the related contents which has been collected at one place, and it has a common domain name. Suppose you are using Flipkart, so if you are visiting their home page, or you are visiting their product listing page, or you are visiting their product details page, so these three pages I have mentioned, like the home page where you landing on clicking on flipkart.com, that is the home page. And if you are visiting some product listing page, suppose you have searched for laptops under 30,000, okay, and you have been redirected to the product search list, and you are seeing a lot of laptops has been listed below, okay, so that I am considering as a product listing page. So on that particular page, you will be seeing a URL that is starting from flipkart.com. And this one is the common domain name for all the pages available on that particular website. And all this collection of web pages is considered as website. For each and every website, there must be a server which is publishing their content over the web. Okay. And that's why you are using that particular website. So
What is server? We will understand later, like how server works and why we need a web server. We will understand that part as well. You just have to remember that website is a collection of web pages and their related content. Means if you are visiting flipkart.com, then you will be seeing content related only to flipkart.com, not from amazon.com. Have you seen that? Anyone? Like if you are visiting amazon.com, suddenly you have seen that the content is coming up from flipkart on that particular domain. Anyone? Any incident you have come across so far? ऐसा हुआ है कभी? लाइक सपोज आप हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से हो सपोज, और आप वहाँ का वेबसाइट विजिट कर रहे हो और वहाँ पे सडन आपको किसी और कॉलेज का वेबसाइट दिख रहा हो, किसी को भी, यू गाइस कैन इंटरेक्ट, सो दिस विल बी बेटर फॉर अस. एनीवन? ऐसा हुआ कभी? प्रणब, साक्षी, सोनू, अनमोल, अरुण, सुषमा, तनिषा, कि आप लाइक किसी एक वेबसाइट को विजिट कर रहे हो और किसी और का कंटेंट आपके पास आ गया हो? नो सर. नहीं हुआ? तो ऐसा कैसे हो रहा है? सोचो ना कि लाइक मिलियन ऑफ बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स है, राइट? आप इनफैक्ट किसी कॉलोनी में जाते हो और एड्रेस ढूंढने निकलते हो, तो आपसे मिस्टेक्स होता है ना कि किसी और का आप डोरबेल बजा सकते हो. दैट माइट बी अ केस, हो सकता है ऐसा, राइट? बट ऐसा क्यों नहीं होता कि लाइक आप flipkart.com पे क्लिक कर रहे हो और किसी और का डेटा नहीं आता? कभी कभी कुरियर बॉय भी लाइक गलत पार्सल गलत जगह पे डिलीवर कर देता है, राइट? बट हाउ दे पीपल आर मैनेजिंग दिस पैटर्न्स कि लाइक कोई भी एक रिसोर्स को अगर ढूंढ रहा है तो वही रिसोर्स उसके पास आता है, किसी और का नहीं. तो ये सिर्फ और सिर्फ ना आईपी एड्रेस का कमाल है. जैसे सपोज इफ यू आर हैविंग योर आधार कार्ड और कोई आपके इंफॉर्मेशन फेच करता है आधार कार्ड से, तो ऐसा हो सकता है क्या कि लाइक आपके आधार नंबर पे किसी और का इंफॉर्मेशन दिख जाए? इज इट पॉसिबल? सोच के देखो. कभी ऐसा हुआ है कि लाइक आप बैंक का अकाउंट खुलवाने गए हो, आपने आधार कार्ड प्रेजेंट करा एंड बैंक स्टाफ इज सेइंग दैट दिस इज नॉट योर इंफॉर्मेशन, दिस वन इज समवन एल्स आधार कार्ड. हैव यू कम अक्रॉस दिस थिंग? नहीं हुआ होगा ऐसा. रीजन क्या है कि वहां पे मैपिंग जो है ना एक सही तरीके से किया गया है, ठीक है? हर एक इंडिविजुअल को यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड किया गया, राइट? यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया गया जो यूनिक है. दैट्स वाई ये क्रॉस कनेक्शन नहीं होता है. आपने अगर मोबाइल फोन पे बात करा होगा आज से 5-7 साल पहले, बिफोर कमिंग टू जियो, लाइक 4G, पहले क्या होता था कि आपने अपने दोस्त को कॉल करा, कनेक्शन कहीं और लग जाता था. होता था ऐसा? एनीवन? कोई भी ऐसा सिचुएशन में आया है? क्या ऐसा कभी सुना हो कि लाइक मैंने कॉल किसी और को लगाया, किसी और का वॉइस आपको आता था? आप बोल सकते हो लाइक देयर इज नो सच रेस्ट्रिक्शन, so you guys can turn on your mic and you can say, and you can also write in the chat, so please be interactive, that will be better. किसी के साथ ऐसा हुआ है कि लाइक आपने कॉल अपने दोस्त को करा बट कनेक्शन कहीं और लग गया? देखो, ऐसा इसलिए होता था ना क्योंकि वहां पे जो मैनेजमेंट है ना, वहां पे इस तरीके से यूनिकली आइडेंटिफाइड नहीं है, ठीक है? तो वहां पे क्या होता था प्रॉब्लम, पहले ये लाइक टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसके कारण वो मैनुअली एक तरीके से समझो तो लाइक कुछ कुछ चीजों पे डिपेंडेंट था और वहां पे ह्यूमन एरर्स आते थे, ठीक है? कि गलती से क्रॉस कनेक्शन लग गया, आपका सिग्नल कहीं और कैच कर गया और वो प्रॉब्लम में आ जाता था, ठीक है? तो इस चीज को सॉर्ट आउट किया, आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर वहां पे भी लेकर के आए. आपके डिवाइस का एक IMEI नंबर होता है, प्लस आपके सिम कार्ड का एक जो आपका कॉलिंग नंबर है, साथ ही साथ उस अगर आपने पीछे देखा होगा तो वहां पे भी एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, राइट? तो वो सारी चीजों का यूज करके एक स्ट्रॉन्ग मैपिंग बनाया गया जिसके कारण क्रॉस कनेक्शन ना हो, कि जब कॉल किया जा रहा तो उसी पर्टिकुलर इंसान को लगे, ना कि दूसरे को, ठीक है? उसी तरीके से वेबसाइट में क्या है कि बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स है. अब ऐसा ना हो कि flipkart.com कोई क्लिक किया, किसी और का कंटेंट आ गया, तो फिर कोई इंटरनेट यूज ही नहीं करता, राइट? धीरे धीरे उसका डिग्रेड होना शुरू हो जाता. तो ये सारी चीजों से बचने के लिए डोमेन नेम जो है वो रोल प्ले करता है. और वेबसाइट का क्या है कि कॉमन में डोमेन नेम ही होता है और वहां पे रिलेटेड कंटेंट ही एक पर्टिकुलर वेबसाइट से रिलेटेड होते हैं एक वेबसाइट पे, ठीक है? अब वो किसी तरीके का वेबसाइट हो सकता है, वेबसाइट का बहुत सारे टाइप्स हैं, वो हम लोग धीरे धीरे समझेंगे. और सबसे बड़ी चीज कि वेबसाइट जो है वो पब्लिकली एक्सेसिबल होता है. ऐसा नहीं है कि लाइक आप किसी वेबसाइट पे जाओगे और आपको बोलेगा कि आप यूज नहीं कर सकते.
हाँ, वहां पे ये हो सकता है कि आपको साइन अप करने बोले, आपको अकाउंट पहले क्रिएट करने बोले, बट देर मस्ट बी अ कंडीशन दैट इज पब्लिकली एक्सेसिबल. All right, and that is the main constituent, or you can say the main part of World Wide Web. Okay, and all these things collectively constituted as World Wide Web. There are also few private websites that can only be accessed on a private network, or like for their internal purposes uses. Suppose if you will be joining any firm after your college, then you will be getting a few private websites as well, because those websites are being used in companies internal purposes. Like suppose there is a administration panel, or your suppose any website that is managing the administration of that company, or any financial software that is managing their company. So these are the crucial websites, right? So these websites are available on private network, and that can only be accessed using that particular network only. You cannot access those URLs publicly. Okay, so there are two types of website. First is public website, and the second one is private website. Public website is available for each and every individual who is available on internet. ठीक है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट का स्कीम है कि जबरदस्ती सबके घर पे पहुंचाया जाएगा, नहीं. जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, जो एक्सेस करना चाहते हैं, उनके लिए एक्सेसिबल है. ठीक है. प्राइवेट वेबसाइट का कंडीशन क्या है कि जिनके पास प्राइवेट नेटवर्क का एक्सेस है वही उसको यूज कर सकते हैं. ठीक है, सिंपल टर्म में. यहां तक में कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ. वेब क्या है, वेबसाइट क्या है, ये चीज आप समझ पाए या नहीं? क्योंकि ये ना बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ये आपको अगर नहीं पता होगा तो लाइक आपका वेबसाइट डेवलपमेंट में इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप वेबसाइट बनाना सीख जाओगे, बट व्हाट आफ्टर वेबसाइट डेवलपमेंट, लाइक आपने वेबसाइट क्रिएट कर दिया, उसके बाद का क्या, राइट? तो वो सारी चीजें भी समझनी जरूरी होती है. ठीक है, एज ए फुल स्टैक डेवलपर यू विल मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ each and every areas of website development, not only creating websites. Okay, so anyone, any doubt so far? Okay, so let's proceed further. Now we will come across like how website works. जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इंटरनेट पे अवेलेबल हो और आप भी एक वेब का हिस्सा हो. जैसे मकड़ी का जाल वाला एग्जांपल आपको बताया था कि हर एक नोड जो क्या है वो आपका सिस्टम है, आपका, आपके दोस्त का सिस्टम, आपके कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं उनके सिस्टम, इंटरनेट पे जो भी पर्सन अवेलेबल है इधर इस स्टेट से या अदर स्टेट से, इस कंट्री से या आउटसाइड द कंट्री, सबका कनेक्शन वो नोड वाला पार्ट है. और जो लाइन कनेक्ट कर रहा है उसको, वो आप समझ लो वायरलेस कनेक्शन है जो आपको हेल्प करता है कनेक्ट करने में. उसमें आपका आईएसपी का भी रोल आता है. ठीक है, तो समझते हैं कि वेबसाइट वर्क कैसे करता है. आप तो बोलोगे सर मैं सर्च इंजन पे जाता हूँ, कुछ भी सर्च करता हूँ और जो भी वेबसाइट देखना होता है क्लिक करता हूँ, वेबसाइट आ जाता है. यही होता है ना, या कुछ और होता है? हम लोग कैसे चेक करते हैं वेबसाइट? मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि कैसे आप यूज करते हैं वेबसाइट. जस्ट यू विजिट सम search engine, you search out for any website. Suppose I am searching out for this. All right, now we will click on this website and it will load. Right, this is it. आप तो ये बोलो कि वेबसाइट ऐसे ही काम करता है. वो इंटरनल मैकेनिज्म क्या है, कैसे ये वेबसाइट यहाँ पे आ गया? ये वेबसाइट क्या आपके सिस्टम पे था? नहीं था, इंटरनेट पे अवेलेबल था. ठीक है, इंटरनेट पे अवेलेबल था, बट किस जगह पे आपको आइडिया नहीं है. सो इफ यू विल लुक आउट फॉर लाइक हु इज होस्टिंग, एक सर्विस है जिससे आपको आइडिया लगेगा कि आपका कोई भी वेबसाइट कहाँ से होस्टेड है, कौन इसको होस्ट कर रहा है, कौन इसका ऑनर है. अगर आपको ये सारी चीजें जाननी है तो आप जस्ट यूआरएल को कॉपी करो एंड पेस्ट इट हियर. Just click on who is search and you will get all the information which is publicly accessible. So you will see that this website is being hosted by Cloudflare, right? And IP address is this. मैंने मेंशन करा था कि हर एक वेबसाइट का अपना एक IP एड्रेस होता है, राइट? इनका नेम सर्वर्स है, जो सर्वर का लाइक एक तरीके से समझो तो कॉलिंग नेम है. जैसे आप अपने घर का नाम सपोज कोई विला रखते हो या कुछ भी रखते हो, तो वो आपका कॉलिंग नेम की तरह नेम सर्वर होता है. ठीक है, जो यूनिक एड्रेस होता है बेसिकली. ठीक है, अब इसके बाद आती है बारी कि ठीक है ये सारी चीजें तो हो गई. अब अगर मेरे को इसके बारे में डीप इंफॉर्मेशन जानना है कि ये इसका इस आईपी एड्रेस का लोकेशन क्या है. ठीक है, सो वी विल यूज लोकेशन
finder using IP address। ठीक है, तो ये आपको बताएगा कि लाइक कहाँ पे आपका IP एड्रेस है, इससे आप देख सकते हो। एक IP एड्रेस लुकअप भी है, कोई भी बहुत सारे सर्विसेज अवेलेबल है, यू कैन यूज एनी। ऑलराइट, so I'm using this one, I'm checking out for this. So this one is saying that this IP address is available in Kolkata, West Bengal, and all this information is coming up, right? Sorry, this one, yes, this one is coming up in this manner। और ये कहाँ पे है, कौन सा, तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये मेरा इंफॉर्मेशन बताया, राइट? इसने हमारा इंफॉर्मेशन बताया जहां से मैं आपको लाइक टीच कर रहा हूँ, ये मेरा पूरा डिटेल आपको बताया, राइट? एयरटेल ब्रॉडबैंड है, केबल कनेक्शन है, DSL है, किस कंटिनेंट में, पॉपुलेशन यहाँ पे क्या है, IP रेंज क्या है, यहाँ का सरफेस एरिया क्या है, GNP क्या है, ठीक है, डेमोग्राफिक डेटा, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, सब कुछ आपको मिल जाता है, राइट? सो इंटरनेट जो है ना बहुत ही और लाइक वेल कनेक्टेड फॉर्म है और बहुत ही बढ़िया आर्किटेक्चर है। इफ यू विल गो इनटू एनी टाउनशिप, तो आप वहाँ पे जैसे देखते हो ना कि वेल प्लान्ड सिटीज टाइप का बचा हुआ है, अच्छे जगह पे बिल्डिंग्स है, अच्छे लोकेशन पे सारी चीजें हैं। सो इन सिमिलर मैनर इंटरनेट इज ऑल्सो बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, ये भी एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न है। ठीक है, सो इन दिस मैनर यू कैन फाइंड आउट लाइक हाउ द थिंग्स इज। मेरा सर्वर जो है वो लाइक GoDaddy पे है, एंड आई हैव hidden like used SSL to hide my own server's response so that not any hacker can reach to us directly. So every website hosting provider try to hide their identity because IP address is similar like you are sharing your home address. Okay, so if we are not comfortable in that manner, so we usually hide our IP addresses. So we have hidden this using Cloudflare. That's why you are not able to see these things. So if I will show you how my IP address is working, so if I will log into my servers, then I can show you. Let me just log into my server. All right. Okay, so you can see this is the domain or server name, right? And hrsolutions.co.in, this is our domain name. अब बोलोगे कि सर जब IP एड्रेस से काम हो जाता तो डोमेन नेम का क्या नीड था, राइट? हो सकता कंफ्यूजन या नहीं हो सकता कि जब IP एड्रेस यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, फिर डोमेन नेम का क्या काम? समझ रहे हो क्वेश्चन मेरा? समझ में आ रहा है या नहीं? कि अगर IP एड्रेस से काम हो सकता है देन व्हाई वी नीड डोमेन नेम, राइट? हो सकता है क्वेश्चन। तो रीजन ये है ना कि आपको नंबर्स याद करना आसान नहीं होगा। इफ सोचो कि अगर दुनिया में डोमेन नेम एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंड द सिचुएशन, तो आपको बताया जाता कि गूगल का जो URL है वो क्या आप कैसे याद रखते हैं? अभी आप google.com याद रखते हो, राइट? आप कैसे याद रखते? 122.34.68.21 गूगल का, ठीक है। अमेजन का कुछ और 128.34.76.131 इस तरीके से। तो डू यू थिंक कि ये याद रखना और लोगों के लिए कन्वीनियंट होता? क्या बेहतर है, google.com, amazon.com याद रखना या फिर ये नंबर्स? विच इज बेटर? क्या बेहतर है, आप खुद बताओ। अब सर डोमेन नेम याद रखना इजी है। अब समझते हैं कि वेबसाइट वर्क कैसे करता है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि मेरा सर्वर का जो लोकेशन IP एड्रेस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जस्ट लेट मी शो, this one is my server IP address. If I will track this particular, just wait for a while, this is the thing. सर्वर कहाँ established है? सिंगापुर में, राइट? आई हैव यूज्ड इट फ्रॉम इंडिया। और अगर मैं आपको दिखाऊं इंडिया से कोलकाता से सिंगापुर का डिस्टेंस, कितना है? मिनिमम अगर आपको शो करेगा तो लाइक 5038.7 किलोमीटर, और मिनिमम जो है वो आपको 86 आवर्स लगेंगे, राइट?
बट क्या आपको 86 आवर लगा क्या एक्सेस करने में वेबसाइट? मैंने क्लिक करा, वेबसाइट लोड हुआ, राइट? तो कैसे ये सारा चीज हो गया? बल्कि इंटरनेट में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है, राइट? आपको पता है ना कि आईपी एड्रेस है, फिर डोमेन नेम है, सर्वर कहाँ पे है, सारी चीजें काम कैसे करती है वो आप समझने का ट्राई करें। सबसे पहले क्या होता है, जब भी आप किसी डोमेन नेम को हिट करते हो, ठीक है, तो डोमेन नेम का ना एक रजिस्ट्री ऑफिस है। इन सिमिलर पैटर्न, if you are well aware of, like in India, if you want to purchase any property, you will have to register in registry office, right? I hope you guys are aware of these things. So in similar pattern, there is a organization which manage this particular thing, that they sell the domain name and they keep a record of DNS, that is known as domain name server. डोमेन नेम सर्वर का काम क्या है कि वो सारे डोमेन्स का आईपी एड्रेसेस नोट करके रखते हैं, ठीक है? सपोज मैंने वेबसाइट पे सर्वर के लिए सर्वर परचेज किया, डोमेन से कनेक्ट करा, एंड देन आई एम लाइक होस्टिंग माय वेबसाइट फॉर ऑनलाइन। सो क्या होगा, जब मैंने डोमेन लिया और उसको जैसे ही सर्वर से कनेक्ट करा, तो डोमेन नेम सर्वर जो था वो जो है हमारे डोमेन के सामने, आप सपोज अगर वो एक्सेल टेबल मेंटेन कर रहे हैं, तो हमारे डोमेन नेम के सामने वो हमारे सर्वर का आईपी एड्रेस डाल करके रख लेंगे, ठीक है? जैसे ही कोई यूजर आएगा और ब्राउजर पे जाएगा और हिट करेगा हमारे डोमेन नेम को, तो वो एक समझो कि कुरियर बॉय है वो, या फिर समझो एक ऑफिस है और उस ऑफिस में एक बेल बॉय है जो उस इंफॉर्मेशन को लेकर के पहुंचेगा कहाँ? डोमेन नेम सर्वर के पास। अब डोमेन नेम सर्वर के पास जाने के बाद डोमेन नेम सर्वर से पूछा जाएगा कि सर इसका रिकॉर्ड आप बताओ कि ये कहाँ पे है, ठीक है? जैसे सोचो कि जोमेटो का एक डिलीवरी बॉय है, आपने कुछ ऑर्डर करा है अपने लिए और आपने एड्रेस जो भी डाला है, तो वो क्या करेगा? सपोज आप कॉलेज के हॉस्टल में रह रहे हो, तो क्या होगा, आपका जो डिलीवरी बॉय है सबसे पहले आपके कॉलेज तक आएगा, कॉलेज में आने के बाद वो गार्ड से परमिशन लेगा, परमिशन लेने के बाद वो आपके हॉस्टल तक पहुंचेगा, अगर हॉस्टल में परमिशन है कि वो अंदर जा सकता है, फिर आपके रूम नंबर ढूंढेगा, राइट? किसी से पूछेगा कि रूम नंबर कहाँ है, फिर आपके रूम नंबर में जाकर के डिलीवरी करेगा। इन सिमिलर पैटर्न, वो बेल बॉय क्या किया, आपका डोमेन नेम पता था उसको और बाकी चीजें नहीं पता थी, ठीक है? तो वो अभी फाइंड आउट करने का ट्राई करेगा कि इसका एक्चुअल लोकेशन कहाँ पे, ठीक है? तो बेल बॉय पहुंचा उस ऑफिस में, ऑफिस में उसने पहुंचाया कि hrsolutions.co.in का मेरे को आईपी एड्रेस दो। अब वो ढूंढेगा, आप सोचो बिलियंस ऑफ वेबसाइट हैं, अगर मैं आपको मैनुअली करने बोलूं बिलियंस ऑफ वेबसाइट में सर्च करो और बताओ, फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है, सर्च ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है, आपका लाइक सालों निकल जाएगा, राइट? बेस्ट केस हो सकता है कि आपको सबसे पहला रो में मिल जाए, वर्स्ट केस और उससे और एक बेस्ट केस हो सकता है कि सबसे लास्ट वाला रो में मिल जाए, फिर भी आपको स्क्रॉल करने में काफी टाइम चला जाएगा, ठीक है? तो सोचो कि उतने सारे रिकॉर्ड को कितना एडवांस एल्गोरिदम होगा जो उसको क्विकली फाइंड आउट करता है, और ये सारा प्रोसेस कितने देर में हो रहा है? लाइक माइक्रो सेकेंड्स में हो रहा है, राइट? सोच लो, सेकेंड के भी कम पार्ट में ये सारा प्रोसेस होता है, ये थ्योरी नहीं है। क्या होता है कि आप जैसे ही हिट करते हो, तो आपका, अगर मोर डिटेल में इंटर करूं ना, तो आपका पहले सिस्टम का एक आईपी एड्रेस है जो किसने प्रोवाइड करा? आईएसपी ने, ठीक है? तो सोचो कितना कॉम्प्लिकेटेड वेब है, जो आप समझने का ट्राई करना कि आपका सिस्टम का आईपी एड्रेस से रिक्वेस्ट गया तो पहले वो आईएसपी के पास जाएगा, क्योंकि आईएसपी ना आपको लाइक वो अपने अकॉर्डिंग आईपी एड्रेस दिया है, ठीक है? ताकि वो मैनेज कर सके, जैसे व्हाट्सएप पे आप आपका नंबर से साइन अप किए हो, तो वो अपना एक यूजर मैनेजमेंट बना के रखा है, सिमिलर तरीके से आईएसपी ने अपना एक यूजर मैनेजमेंट बना के रखा है, जितना वो ब्रॉडबैंड या फिर मोबाइल सिम कार्ड उन्होंने सप्लाई करा, उसका एक यूनिक आईपी एड्रेस डाल के रखा है। अब वो पहुंचेगा आपके सेल टावर के पास, मतलब आपके आसपास में जो टावर है वहां पे इंफॉर्मेशन पहुंचेगा, रिक्वेस्ट आपका, राइट? ये वेबसाइट इसको चाहिए, इसने हमारे इंटरनेट पे रिक्वेस्ट डाला, वो टावर फिर एक्सेस करेगा कहाँ? डोमेन नेम सर्वर। डोमेन नेम सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगा, वो आईपी एड्रेस ढूंढेगा, आईपी एड्रेस ढूंढने के बाद अब उसको पता चला कि ये आईपी एड्रेस है। अब आईपी एड्रेस का भी एक लुकअप है कि कहाँ पे ये है। अब वो आईपी एड्रेस लुकअप से उस पर्टिकुलर लोकेशन तक पहुंचेगा, राइट? जो कि सिंगापुर है। सिंगापुर पहुंचा, अब वो सर्वर को नॉक नॉक करेगा कि भाई एक रिक्वेस्ट आया, मेरे को फाइल्स चाहिए, राइट? अब वो रिक्वेस्ट सर्वर के पास पहुंचा। अब सर्वर पे अगर आपका स्टैटिक पेज है, मतलब जो जिसमें कुछ डायनेमिक कंटेंट लोड नहीं हो रहे, जस्ट एक एचटीएमएल पेज है सपोज, तो वो तुरंत दे देगा। अगर सोचो कि वो डायनेमिक पेज है, फ्लिपकार्ट जैसा, अमेजन जैसा, तो वहां पे क्या होता है? डेटाबेस से इंटरेक्शन होता है और वहां से डेटा आकर के फीड होता है, फिर वेबसाइट क्रिएट होता है, फिर सर्वर सामने भेजता है,
अब सोचो कि ये डायनेमिक वेबसाइट है, तो क्या होगा, सर्वर फिर उसको प्रोसेस करेगा, सर्वर प्रोसेस करेगा, सारा फाइल्स स्ट्रक्चर में लाएगा, उसके बाद फिर वो फाइल स्ट्रक्चर किसको हैंड ओवर करेगा, उस बेल बॉय को, जो कहां पहुंचा है, सर्वर के पास। अब वो सर्वर से फिर दौड़ा दौड़ा कहां आएगा, आपके आईएसपी के पास, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास। अब बोलेगा उसको, भाई किसने रिक्वेस्ट डाला था, बता तो सही, तब तो डिलीवरी करूं। राइट? ऐसा हुआ है कभी अनमोल कि आपने कोई वेबसाइट सर्च करा है और उसका रिजल्ट अरुण को गया हो, या फिर सोनू ने वेबसाइट सर्च करा और उसका रिजल्ट तनिषा के डिवाइस पे दिख रहा है, या फिर तनिषा ने कोई सर्च करा और उसका रिजल्ट साक्षी के डिवाइस पे दिख रहा है? ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ। तो सोचो, तो फिर वो आईएसपी के पास आएगा और आईएसपी फिर बताएगा कि इस डिवाइस पे जाओ, और अब वो आपके डिवाइस पे सारा फाइल्स लेकर के आएगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर, मैं अभी फर्स्ट सेशन में बता रहा हूं और ये लास्ट सेशन तक या फिर हमेशा के लिए फिक्स है, ठीक है, कि वेबसाइट का जो कोड है रन्स ऑन योर ब्राउजर, वो कोड फॉर्मेट में आता है, ठीक है, और वो आपके ब्राउजर पे रन होता है। ये मत समझना कि प्री रेंडर्ड वेबसाइट आता है और जस्ट आपको उसका लुक दिखता है, नहीं। सोर्स कोड कम्स टू योर ब्राउजर एंड योर ब्राउजर कन्वर्ट इट इनटू अ वेब पेज। समझ में आई बात, या कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ? ठीक है, तो क्या होता है, सर्वर से सॉरी आपका डोमेन नेम से रिक्वेस्ट डीएनएस को जाता है, सॉरी आप जैसे क्लिक करते हो तो डोमेन नेम सर्वर तक रिक्वेस्ट जाएगा, वहां से सर्वर, सर्वर से फिर आपके सिस्टम पे, फिर आपका सिस्टम उसको रेंडर करेगा एंड देन फिर आपको आउटपुट डिस्प्ले करेगा। और इतनी सारी चीजें जो है कहाँ पे कितने सेकंड में होती है, माइक्रो सेकंड्स में होती है। राइट? अगर वहां पे डायनेमिक वेबसाइट है और गलती से बैकएंड मतलब जो डेटाबेस है वो कहीं और है, किसी और सर्वर पे, तो क्या होगा, आपका सर्वर फिर उस पर्टिकुलर सर्वर को कनेक्ट करेगा कि भाई तू डेटाबेस, अभी तो मैं सामने भेजूं, फिर वो वहां पे जाएगा, डेटाबेस से डेटा आएगा, फिर आपका सर्वर सारा चीज प्रोसेस करेगा, बंडल बनाएगा एंड देन फिर आपको डिलीवरी करेगा। अब सोचो कि अभी इंडिया में इतना फास्टेस्ट डिलीवरी है, फिर भी वन डे डिलीवरी में कम से कम 10 से 12 घंटे लगते हैं। लगते या नहीं लगते? कोई भी सामान आप ऑर्डर करते हो ई कॉमर्स से, फ्लिपकार्ट अमेजन से, सेम डे डिलीवरी है तो भी आपको 10 से 12 घंटे लगते हैं या नहीं लगते? लगते हैं। बट सोचो कैसा एडवांस सिस्टम है कि ये सारा प्रोसेस, सोचो माइल्स में वो ट्रैवल कर गया, लाइक 86 आवर का डिस्टेंस है वो, 59,000 किलोमीटर के आसपास कुछ दिखा रहा था डिस्टेंस, उतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, गया और वापिस भी आया। राइट? ये तो हुआ कि सर्वर का। अब सोचो बीच में डीएनएस कहीं और होगा तो हो सकता है ना। तो ये सारा पूरा पूरा प्रोसेस जो है वो माइक्रो सेकंड्स में होता है। सोचो कितना कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर है, कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और कितना स्मूथली चीजों को रन कर रहा है। तो ये चीजें आपको समझने की नीड है और यही चीज आपको क्रिएट करना होगा इस तरीके से कि आपका वेबसाइट जो है ना सर्वर पे कम टाइम ले। अब सोचो इतना कॉम्प्लेक्स है, आप ये बताने का रीजन ये था ना कि आपको जो वेबसाइट डेवलप करनी है उसमें जो सर्वर का प्रोसेसिंग टाइम है ना, वो आपको, आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि आप उसको मिनिमाइज करो। जितना कम में आप उसको रेडी कर सकते हो उतना बेहतर होगा। ठीक है? उतना फास्ट आपका वेबसाइट होगा और उतने ज्यादा यूजर्स आपके वेबसाइट से अट्रैक्ट होंगे। सोचो फ्लिपकार्ट पे लाखों में प्रोडक्ट हैं, राइट, एंड इफ दैट टेक्स 15 मिनट्स टू अरेंज ऑल दीज प्रोडक्ट्स, जब आप रिक्वेस्ट डालते हो तो क्या आप फ्लिपकार्ट आज यूज कर रहे होते? आप 15 मिनट किसी वेबसाइट के लिए वेट किए हो क्या? अनटिल और अनलेस ये गवर्नमेंट वेबसाइट है जहां पे आपकी आपकी नीड होती है, तब आप वहां पे वेट करते हो। उसके अलावा कोई भी ऐसा वेबसाइट जो ज्यादा टाइम ले रहा हो और आप वहां पे टिके हो? सुषमा, अरुण, साक्षी, सोनू, तनिषा, अनमोल, आप लोग चैट करो यार, आप लोग बिल्कुल साइलेंट हो, समझ में नहीं आ रहा मुझे कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा या फास्ट जा रहा हूं तो आप बता सकते हो कि सर समझ में नहीं आ रहा है, फास्ट है तो मैं स्लो डाउन कर जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इंटरेक्ट करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल। ये सर कंफर्टेबल है, स्पीड ठीक कंफर्टेबल? है। ओके। तनिषा, साक्षी, आप लोग का जस्ट राइट एस और नो। कंफर्टेबल है सर। ओके, सो अब तक समझ में आया ना कि क्या चीजें समझ, देखो वेबसाइट डेवलपमेंट में तभी आपका इंटरेस्ट आएगा ना जब आप समझोगे पूरा प्रोसेस को। ठीक है? तभी आपको सारी चीजें करने में भी मजा आएगी और आप डीप वे में आप सही चीजें, प्रोडक्ट, सही प्रोडक्ट बना पाओगे। जैसे बोला जाता है ना कि जब तक आपको प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है तब तक आप एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं बना सकते।
राइट। इन सिमिलर वे, जब तक आपको वेब का पूरा अच्छे से नॉलेज नहीं होगा, आप एक अच्छा वेबसाइट कैसे बना सकते हो? आप क्या करोगे, चीजों को असेंबल कर दोगे, इंटरनेट पे कोड्स अवेलेबल है, आप उसको असेंबल तो कर दोगे, ठीक है, बट जब नीड आएगी कि उसको फास्ट करना है, तब तो चैलेंज आता है ना। वेबसाइट तो कोई भी बना सकता है, एनीवन, लाइक बहुत सारे प्री नो कोड वेबसाइट सब आ चुके हैं, राइट। एआई का जमाना, आप एआई से जनरेट कर सकते हो, बट प्रॉब्लम यह है कि लाइक उसको ऑप्टिमाइज करना, ठीक है, उसको सही तरीके से लेकर के आने, यूजर एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें रेस्पॉन्सिबिलिटी में आप लोगों के अंडर आएगी। और अगर आप ये सारी चीजें कर पाओगे ना, तभी आप एक अच्छा फुल स्टैक डेवलपर कहलाओगे, ठीक है। तो आप जितने माइक्रो वे में जाओगे, जितने डीप डाइव करोगे, उतना बेहतर रिजल्ट्स आप लेकर के आ पाओगे। ये सिंपल सा चीज है, फंडा यही है, ठीक है। इसलिए मैं इतना डीप जा रहा हूँ, अदरवाइज मैं लाइक डायरेक्टली HTML CSS से स्टार्ट कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो काफी आसान होता है पढ़ाना, क्योंकि उसके लिए इंटरनेट पे बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, कॉपी पेस्ट कर करके पढ़ा दो, ठीक है। बट द थिंग इज कि लाइक बेसिक इन्फॉर्मेशन है ना, वो समझना इंपॉर्टेंट है कि लाइक कैसे चीजें काम कर रही है। इसलिए मैंने विजुअल रिप्रेजेंटेशन का दिया था। तो अगर आप विजुअल रिप्रेजेंटेशन को देखोगे गौर से, तो क्या है कि ब्राउजर से HTTP या HTTPS रिक्वेस्ट जाता है, वो रिक्वेस्ट कहाँ पहुंचता है, सर्वर के पास, और सर्वर फिर आपको हेडर और कंटेंट के साथ आपको रेस्पॉन्स देता है, और उसको फिर ब्राउजर रेंडर करेगा और आपको आउटपुट देखेंगे। बीच का कॉम्प्लेक्सिटी को मैंने जस्ट एक्सप्लेन करा है, यहाँ पे विजुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं ऐड करा। चलो, इसी का स्टेप्स इन्वॉल्व था कि कैसे वर्क करता, तो वही बता रहा था। ब्राउजर जो है इंटर्स करते हुए यूआरएल, ये यूआरएल पहुंचता है आईपी एड्रेस के पास, आईपी एड्रेस डीएनएस सर्वर के पास है, यहाँ से रिटर्न करेगा आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस से पहुंचेगा आपके सर्वर के पास, सर्वर जो भी कोड रिटर्न करेगा, ये आएगा ब्राउजर पे, ब्राउजर उसको रन करेगा और डिस्प्ले करेगा आपको वेबसाइट को। तो यही स्टेप था जो आपको अभी एक्सप्लेन करे थे। इसमें कोई कंफ्यूजन तो आई गेस नहीं होगा, अगर है तो आप पूछ सकते हो। अब आती बारी समझने का यूआरएल का, कि यूआरएल यूआरएल बहुत लाइक यूज हुआ, बट है क्या, इतना क्यों लाइक इसको प्रेफरेंस दिया जा रहा है, ऐसा क्या है इसमें, राइट। तो समझने का ट्राई करते हैं। यूआरएल ना एक्चुअली बहुत सारे छोटे छोटे चीजों से मिलकर के बना है, ठीक है। जैसे आपका घर का एड्रेस अगर मैं बोलूं, तो घर का एड्रेस आप कैसे बताते हो, पहले आप अपना हाउस नंबर मेंशन करते हो, राइट। हाउस नंबर के बाद आप किस गली में रह रहे हो, इफ दैट इज एप्लीकेबल देन यू ऐड दैट थिंग, इफ दैट इज नॉट एप्लीकेबल यू राइट योर मोहल्ला नेम और स्ट्रीट नेम, ठीक है। इसी पैटर्न में बढ़ते हो ना। स्ट्रीट नेम के बाद आप क्या करते हो, उसके बाद आप बताते हो किस लोकेलिटी में क्या लैंडमार्क वगैरह आप बताते हो, लैंडमार्क बताने के बाद आप किस एरिया में वो बताते हो, उसके बाद फिर आप बढ़ते हो, सिटी बताते हो, देन स्टेट, देन कंट्री, राइट। सपोज यू आर ब्रिंगिंग अप इंटरनेशनल पार्सल, देन आप इस तरीके से एड्रेस मेंशन करते हो, ठीक है। अब उसी तरीके से सोचो कि वेबसाइट का भी तो एक होना चाहिए ना पैटर्न, कि कैसे पता चलेगा कि किस जगह पे है और किस तरीके से जाना है, ठीक है। सपोज आप कुरियर लेकर के आर्मी के रीजन में एंटर कर रहे हो, आपको उसके प्रोटोकॉल्स नहीं पता है, तो कैसे चलेगा, राइट। वहां पे शूट एंड साइट का ऑर्डर होता है, अगर आप सपोज नहीं रुके, वो डायरेक्ट आपसे आप पे गन फायर कर दिया, तो हर जगह का एक प्रोटोकॉल होता है ना, कोई एरिया रेस्ट्रिक्टेड होता है, कोई एरिया पब्लिकली एक्सेसिबल होता है, राइट। तो उसी तरीके से वेबसाइट पे भी तो बहुत सारी इस तरीके की चीजें होंगी ना, जो कुछ प्राइवेट नेटवर्क पे होगा, कुछ लाइक पब्लिक नेटवर्क पे, बट फिर भी वहां पे कुछ कुछ चीजें रिक्वायर्ड है। तो वो सारी चीजें कैसे मैनेज होती है। तो यूआरएल जो है, मैंने आपको बताया कि वेबसाइट का एक एड्रेस है, तो वेबसाइट का एड्रेस है, तो उसको समझते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो उसमें ना सबसे पहला चीज आता है इंटरनेट का ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल, कि किस प्रोटोकॉल से सारे ट्रांजैक्शन होंगे, ये पहले बताना होता है यूआरएल में। देन आपको बताया जाता है कि लाइक कौन सा डोमेन नेम है, ठीक है। डोमेन नेम के बाद फिर रिलेटिव में पाथ बताया जाता है। रिलेटिव पाथ का मतलब क्या है, कि जैसे सपोज कोई कुरियर बॉय एक अपार्टमेंट में पहुंचा, अपार्टमेंट में बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं, बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं, अब किस फ्लैट का है, तो रेफरेंस में वो आप बताओगे ना कि इस अपार्टमेंट का ये फ्लैट नंबर, राइट। या फिर आपके गली में आ गया, तो आप यूनिकली हाउस नंबर बताते हो ना कि इस हाउस नंबर पे आना है। सिमिलर तरीके से आपके वेबसाइट तक पहुंचा, वेबसाइट पे पहुंचने के बाद किस पेज पे, मल्टीपल पेज अगर है तो किस पेज पे, तो वो रिलेटिव पाथ में कंसीडर होता है, ठीक है। और ये पूरा कलेक्शन ना यूआरएल कहलाता है। तो उसी का अगर इंटरनेट से टर्म उठाओ तो ये होता है ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, colloquially termed as a web address, and is a reference to a web resource that specifies its location on a computer network and a mechanism for retrieving it, like एक mechanism लगाओ जिससे आप इसे retrieve कर सकते हो।
A URL is a specific type of uniform resource identifier. Although many people use the two terms interchangeably, URLs occurs most commonly to reference web pages, that is HTTP, but are also used for file transfer, that is also called FTP, and email, that is called mail to, and database access, that is JDBC, and many more other application. इसी में बताया ना आपको कि किस तरीके का कनेक्शन आपको क्रिएट करना है, वो आपको रखना पड़ता है यूआरएल में। अब देखो यूआरएल में लाइक मेल का मेलिंग भी आप करते हो, जीमेल आप यूज कर रहे हो, बहुत सारे अदर सर्विस प्रोवाइडर जो मेल प्रोवाइड करते हैं, याहू है, फिर माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक है, ठीक है। तो उसी तरीके से सर्वर पे भी तो ऐसा हो सकता है कि आप अपना एक खुद का मेलिंग सिस्टम बना रहे हो जो आपके कंपनी में अंदर यूज होगा इंटरनल यूज के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजों के लिए प्रोटोकॉल होता है मेंशन कि किस तरीके का चीज आप करना चाहते हो, आप पहले बताते हो, ठीक है। तो जैसे आपका लेन में टू व्हीलर्स आ पाएंगे, फोर व्हीलर्स आ पाएंगे, आप अगर नहीं मेंशन करोगे, सपोज आपका लेन टू व्हीलर्स के लिए सिर्फ एप्लीकेबल है, फोर लेन नहीं आ सकते, फोर व्हीलर्स नहीं आ सकते अंदर, और आपने ये चीज मेंशन नहीं करा, तो डिलीवरी बॉय को प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा, राइट। तो आपके सामान जो है सही से आपके घर तक डिलीवर नहीं हो पाएंगे। इन सिमिलर पैटर्न अगर आप कोई भी इंटरनेट पे कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहे हो और आप बताओगे नहीं कि किस तरीके का कनेक्शन आपको स्टैब्लिश करना है, तो प्रॉब्लम होंगे कि एरर्स आ सकते हैं कि आपको लाइक करना था फाइल ट्रांसफर, आप HTTP प्रोटोकॉल डाले हो कि लाइक मुझे वेबसाइट विजिट करना, तो गड़बड़ है ना। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। अब FTP क्या होता है ये चीज बताऊंगा डिटेल में जब सर्वर की तरफ इंटर करेंगे कि सर्वर पे फाइल आप कैसे अपलोड करते हो, तो उसके लिए है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कैसे आप सर्वर पे फाइल्स भेजते हो, कैसे आप वहां से डाउनलोड करते हो, तो ये सारी चीजें आपका आएगा किसमें, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के अंदर। मेल टू वाला मैं आपको बता चुका, मेल वाला। अब डेटाबेस है सर्वर पे होस्टेड, अब उससे कनेक्शन बनाना तो वो JDBC में आप करोगे, ठीक है। अब वेबसाइट पे अगर मैं फोकस करूं तो वहां पे दो तरीके का प्रोटोकॉल है, एक है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दूसरा है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। सिक्योर्ड का मतलब क्या है कि लाइक वहां पे ना सिक्योरिटी है, इंक्रिप्शन बेस्ड है, डायरेक्टली ऐसे ही ओपनली ट्रांसफर नहीं हो रहा। तो आपने अगर नोटिस करा होगा तो वेबसाइट पे दो तरीके का वेबसाइट होता है, एक जिसमें लॉक लगा हुआ होता है, दूसरा जिसमें लॉक लगा हुआ नहीं होता है। मैं दोनों वेबसाइट पहले आपको दिखाता हूँ सो दैट कि आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओ और समझ पाओ, ठीक है। तो देखो ये जो वेबसाइट है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लॉक है, और इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बताएगा कि ये कनेक्शन क्या है, सिक्योर्ड कनेक्शन है, राइट। ये सिक्योर्ड कनेक्शन है, सर्टिफिकेट जो क्या है, वैलिड है, तो आप यहाँ पे पैसे वगैरह के ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अब दूसरा वेबसाइट मैं दिखाता हूँ जिसमें लॉक नहीं लगा हुआ होगा, ये क्या बता रहा है, नॉट सिक्योर। और अगर आप इसका यूआरएल देखोगे, कॉपी करके मैं नए में पेस्ट कर रहा हूं, तो देखना इसमें HTTP यूज हुआ है, राइट। और इसका मैं अगर कॉपी करके आपको उसी जगह पे दिखाऊं तो क्या है, HTTPS, दिख रहा है। तो यही है जो दो प्रोटोकॉल है आपका फाइल सॉरी वेबसाइट का ट्रांजेक्शन करने में हेल्प करता है। इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। फिर आगे बताया www. ये ऑप्शनल होता है, लाइक वर्ल्ड वाइड वेब के लिए एक्सेसिबल है फुल्ली, तो ये वर्ल्ड www. डाला हुआ है। फिर ये डोमेन नेम है जिससे आइडेंटिफाई होगा कि लाइक हमारा सर्वर कहाँ पे है, ये इसके लिए यूज में आता है। सपोज मैं अबाउट अस पेज पे हूँ, तो ये स्लैश अबाउट की जो बात कर रहा था ना, ये पाथ है, और ये भी पूरा यूआरएल ही कहलाएगा, ऐसा नहीं कि .in तक ही यूआरएल कहलाएगा। इनफैक्ट इसमें अगर क्यूरी स्ट्रिंग भी आते हैं तो भी वो यूआरएल कहलाएगा। जैसे क्यूरी स्ट्रिंग की बात करूं अगर मैं, तो मैं आपको दिखाता हूं कि क्यूरी स्ट्रिंग क्या होता है, ठीक है। आपने वो सब चीजें देखी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो क्यूरी स्ट्रिंग क्या है, अगर मैं एडिट पे जाऊं, तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो .php के बाद भी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के साथ चीजें दिख रही है, राइट। और यही कहलाता है आपका क्यूरी स्ट्रिंग, और ये पूरा यूआरएल, ठीक है। तो यूआरएल में बहुत सारी चीजें होती है, क्या क्या होता है, पहला ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है, फिर दूसरा www. ऑप्शनल वाला पार्ट जो आपको बताया, देन आपकी बारी आती है लाइक की डोमेन नेम क्या है, देन रिलेटिव पाथ, और उसके बाद फिर क्वेरी स्ट्रिंग्स, ठीक है। और ये सब वेबसाइट पे होता है। इनफैक्ट आप गूगल पे सर्च भी करते हो ना कोई भी चीज, सपोज यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है। तो देखो अगर आप इसको नोटिस करोगे तो यहाँ पे देखो क्या है, स्लैश सर्च तक इसका रिलेटिव पाथ हो गया, फिर यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग है ये सारा, है ना।
तो ये सारा क्वेरी स्ट्रिंग है। ये सब कैसे जनरेट होता है, ये सारी चीजें आप सीखोगे, और ये सब कुछ इतना कॉम्प्लेक्स वाला जो टाइप दिख रहा है ना, ये सब कुछ आप कर पाओगे। ये कोई लाइक रॉकेट साइंस नहीं है, काफी इजी चीज है। अभी दिखने में आपको खतरनाक लग रहा होगा, बट ये सारी चीजें आप जनरेट करोगे, इसलिए मैं इस पार्ट को भी शो कर रहा हूँ कि लाइक आप चीजें कैसे मेंटेन करोगे। ठीक है, क्योंकि आप भी तो वेबसाइट बनाओगे ना, जहाँ पे एक पेज से दूसरे पेज पे लोग जाएंगे, राइट? तो उसके लिए ये चीज है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें भी समझनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यूआरएल क्या है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, या कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। यूआरएल में कोई कंफ्यूजन तो बताओ, यूआरएल क्या है, कैसे आप समझेंगे। आई होप कि आप अब यूआरएल को पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या है, कौन सा सिक्योर्ड है, कौन सा अनसिक्योर्ड है, कहाँ तक डोमेन नेम है, और कौन सा उसका रिलेटिव पाथ है, कौन सा क्वेरी स्ट्रिंग है। क्वेश्चन मार्क के बाद सारा क्वेरी स्ट्रिंग स्टार्ट होता है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। अगर मैं एक यूआरएल आपको दूं तो आप बता पाओगे कि कौन सा क्वेरी स्ट्रिंग है, कौन सा क्या है? ठीक है, मैं आपको एक यूआरएल देता हूं, आप उसमें से बताना मेरे को कि कौन सा क्वेरी स्ट्रिंग है, कौन सा क्या है। ये जस्ट एक टास्क है, जस्ट क्विकली आप लोग चैट में रिप्लाई करना, बोलने की नीड नहीं है अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो, और अगर आप कंफर्टेबल हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप बोलो। ठीक है, थोड़ा सा लंबा सा यूआरएल दिखेगा, बट डरना नहीं है, जस्ट ट्राई टू रीड दिस यूआरएल। आप क्लियरली रीड करोगे ना तो आपको आइडिया लगेगा कि क्या है क्या नहीं। तब तक मैं इसी यूआरएल को नोटपैड पे बड़ा सा करके प्लेस करता हूँ, सो दैट कि आप देख पाओ। अच्छा, बताते जाना एक एक करके, ठीक है, कि क्या है क्या नहीं। एनीवन, कोई बताओ क्या है इसका ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पहले बताओ क्या है। अनमोल, सिक्योर ट्रांसफर प्रोटोकॉल है या बेसिक ट्रांसफर प्रोटोकॉल है? देखो, जहां भी आपको HTTPS दिखे ना, पी लास्ट में एस लगा हुआ है, तो वो ट्रांसफर सिक्योर ट्रांसफर प्रोटोकॉल के अंदर आता है। ठीक है, सिर्फ HTTP रहे तो वो नॉर्मल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। उसके बाद आपको बताया था www डॉट, तो एक लाइक वर्ल्ड वाइड में अगर एक्सेसिबल है तो वो डाला जाता है। एंड देन flipkart.com जो है वो क्या है, इसका डोमेन नेम है। एंड देन Acer 23 से लेकर के जो लिखा हुआ है 241 बाई तक, इनफैक्ट उसके आगे तक P/ITMA/D3 जो लिखा हुआ वहां तक, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कैसा कैसा क्या समझते हैं। ये जो चीज है इसको क्या बोलेंगे, ये आपका सिक्योर ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, क्या है, सिक्योर ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके बाद ये जो है आपका flipkart.com, ये है आपका डोमेन नेम, और ये जो है इसका रिलेटिव पाथ है। अब अगर आप समझने का ट्राई करोगे तो इसका फाइल स्ट्रक्चर कैसे मैनेज किया गया वो आपको बता रहा है। ये बता रहा है कि एसर का 23/8 इंच फुल HD LED बैकलिट VA पैनल गेमिंग मॉनिटर में जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का आईडी जो है वो प्रोडक्ट आईडी ये है, ITMA 5D9B3D3E82D3। ये इनकोडिंग है इनका प्रोडक्ट आईडी का। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता ये चीज? ठीक है, तो मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि आइटम का जो आईडी इन्होंने बना करके रखा है। हम लोग भी जब यूआरएल स्ट्रक्चर करते हैं ना, जब आप राउटिंग करोगे कि कौन सा पेज पे कैसे रिडायरेक्ट होगा, ये भी आपका काम है ना राउटिंग। ठीक है, कि कौन सा पेज पे कैसे जाएगा, कौन सा लिंक कहाँ लेकर के जाएगा, एक वेबसाइट के अंदर कैसे अबाउट अस पेज दिखाएंगे, कैसे कॉन्टैक्ट अस पेज दिखाएंगे, कैसे प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज दिखाएंगे, कैसे प्रोडक्ट डिटेल्स पेज दिखाएंगे। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीड पड़ेंगी, और ये डायनेमिक वेबसाइट है इसलिए इसमें क्वेरी स्ट्रिंग है। जो वेबसाइट स्टैटिक होगा ना वहाँ पे कभी भी क्वेरी स्ट्रिंग आपको नहीं दिखेगा। क्वेरी स्ट्रिंग वहीं पे दिखेगा जो डायनेमिक वेबसाइट है, जहाँ पे आपको डेटाबेस से क्वेरी करना है, इसीलिए आपको क्वेरी स्ट्रिंग का नीड पड़ेगा। और वही क्वेरी स्ट्रिंग से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि किस तरीके का डेटा आपको डेटाबेस से फेच करना है। ठीक है, इसलिए क्वेरी स्ट्रिंग यूज में आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ तक का रिलेटिव पाथ उस वेबसाइट के अंदर। और ये जो है PID एक क्वेरी स्ट्रिंग हो गया, फिर M% के बाद दूसरा क्वेरी स्ट्रिंग LID, ये हो गया आपका। फिर तीसरा है मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस क्या है, फ्लिपकार्ट। फिर है स्टोर, स्टोर का
ये हो गया। फिर है सीरियल नंबर, सीरियल नंबर ये हो गया। फिर क्या है, ओ ट्रैकर, ओ ट्रैकर क्या है, ब्राउज। फिर है ओ ट्रैकर 1, क्या है, एचपी रीच नेविगेशन पिन न्यू, ये मेरा लैपटॉप के रिलेटेड बता रहा है। फिर उसी में परसेंटेज के बाद परसेंटेज टू स्पेस को डिनोट करता है। एंड देन एफ मर्चेंडाइजिंग एनएवी, ये सब चीज है। ये यहाँ तक आ गया किसमें, ये आ गया ओ ट्रैकर 1 का, ठीक है। फिर एफएम, वो ऑर्गेनिक है। फिर आईआईडी, ये बता रहा है। फिर उसी तरीके से आगे बढ़ते जाओगे तो आपको मिलेगा पीपीटी, फिर पीपीएन, ठीक है, एसएसआईडी। तो ये सारा चीज क्या है, क्वेरी स्ट्रिंग है। तो आप इस तरीके से पढ़ सकते हो कि क्या क्या वेरिएबल्स पास किए गए हैं उस यूआरएल पे, ठीक है। आई होप कि इस सेशन के बाद अब आप यूआरएल को पढ़ पाओगे और बड़ा सा यूआरएल देख करके डरोगे नहीं। पढ़ पाओगे अनमोल, सोनू, अरुण, सुषमा, तनिषा, क्या लगता है? अब यूआरएल देखोगे तो आप डर जाओगे कि लाइक मैं इसको पढ़ नहीं सकता, या अब आप कंफर्टेबल हो यूआरएल पढ़ने में? यूआरएल को समझ पाओगे या नहीं समझ पाओगे? क्योंकि एज वेबसाइट डेवलपर ना आपको यूआरएल समझना पड़ेगा, क्योंकि आप भी लिंक्स क्रिएट करोगे ना, तो आपको आइडिया ही नहीं रहेगा कैसे लिंक्स बनते हैं, कैसे लोग बना रहे हैं, तो आप कैसे उस तरीके से बना पाओगे, राइट। अनमोल, तनिषा, सोनू, कुछ तो बोलो, सुषमा। ठीक है, तो ये चीज जो है वो आप इस तरीके से यूआरएल को समझते हो। इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। ऑल राइट, सो हमने समझा कि यूआरएल कैसे काम करता है, ठीक है, एड्रेस समझ लिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं और समझने का ट्राई करते हैं कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए लाइक डेमो सेशन में आओ, तो पहले समझेंगे कि वेब डेवलपमेंट होता क्या है, ठीक है। दो टर्म आप सुनते होगे, वेब डेवलपमेंट और वेबसाइट डिजाइन, वेब डिजाइन, दोनों अलग अलग चीजें। तो वेब डेवलपमेंट क्या है, तो इसमें आप उस वर्क को कंसिडर करते हो जिसके में आप वेबसाइट रेडी करते हो इंटरनेट के लिए, ठीक है, या फिर प्राइवेट नेटवर्क के लिए। इसमें जो भी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं ना, या जो भी वर्क इन्वॉल्व होते हैं, वो वेब डेवलपमेंट का पार्ट होता है। वेब डेवलपमेंट रेंज करता है कहाँ से, डेवलपिंग अ सिंपल स्टैटिक वेबसाइट से लेकर के लाइक कॉम्प्लेक्स वेब एप्लीकेशन, जैसे इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में ई कॉमर्स आ गया, या सोशल मीडिया नेटवर्क जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये सारी चीजें आ गई। या फिर कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ टास्क करने के लिए, जो कि लाइक एक डैशबोर्ड काम करता है। ये सारी चीजें जो भी है वेब इंजीनियरिंग का काम होता है। वेब, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है वो आप समझना। वेब इंजीनियरिंग, वेब डिजाइन, वेब कंटेंट डेवलपमेंट, क्लाइंट लीजिएशन, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, वेब सर्वर एंड नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन एंड ई कॉमर्स डेवलपमेंट, इसमें सारी चीजें इंक्लूडेड होती है, ठीक है। डिजाइन से लेकर के पूरे वर्किंग फंक्शनैलिटी तक ये सब कुछ कंसिडर होता है वेब डेवलपमेंट के अंदर। लोग क्या करते हैं, जस्ट एक वेब डिजाइन करना सीख जाते हैं, लाइक उस क्लाइंट साइड का स्क्रिप्टिंग करना सीख जाते हैं और अपने आप को वेब डेवलपर बोलते हैं, राइट। बट वो वेब डेवलपर का एक हिस्सा है। पूरा वेब डेवलपमेंट तभी आपको आएगा जब आप ये सारी चीजें समझोगे, वेब इंजीनियरिंग, वेब का डिजाइन, कंटेंट डेवलपमेंट, क्लाइंट लिएशन, लाइक क्लाइंट साइड पर कैसे रेंडर होगा चीजें, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड क्या स्क्रिप्टिंग, वेब सर्वर नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन, फिर ई कॉमर्स का डेवलपमेंट, ये सारे कुछ कंसिडर होंगे वेब डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। फिर आती बारी कि इंपॉर्टेंस क्या है इसका, क्यों सीखे भाई, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी सीख सकते हैं, वेब डेवलपमेंट क्यों? तो बताता हूँ रीजन क्या है। रीजन ये है कि वेब जो है एक्सेसिबल है हर एक डिवाइस से, नॉट ओनली टू मोबाइल और डेस्कटॉप, इट ऑल्सो बी एक्सेसिबल टू टैबलेट एंड एनी अदर डिवाइस। फिर कस्टमर और यूजर नीड जो है आपके बिजनेस को इजिली फाइंड कर पाता है, ठीक है। कस्टमर जो है आपके बिजनेस को इजिली फाइंड आउट कर पाएंगे, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारे लोग अवेलेबल है, तो आपके बिजनेस को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। फिर अगर आपका एक वेबसाइट होता, तो हमारे सोसाइटी में एक लाइक ट्रस्ट वाला चीज है कि लोग ट्रस्ट करते हैं उसी ऑर्गेनाइजेशन को जिसका वेबसाइट एग्जिस्ट करता है, राइट। उनको एक अच्छा रेपुटेशन मिलता है। फिर है आपका वेबसाइट जो है वो आपका राउंड द क्लॉक सेल पर्सन है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं, तो आई होप आपने कभी ना कभी कोई भी मॉल विजिट करा होगा, राइट। मॉल विजिट करा है, मेरे को ये बताओ, उसके बाद फिर आगे आएंगे। क्यों बोल रहा हूँ राउंड द क्लॉक सेल पर्सन, सेल्स पर्सन? मॉल विजिट करा है या नहीं करा, आप लोग बताओ। मॉल में आपने किसी ना किसी स्टोर में एंटर करा होगा, राइट। वहां पे बहुत सारे स्टाफ आपको दिखते होंगे जो ट्राई करते होंगे आपको कन्विंस करने का कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, करते कन्विंस?
सपोज आप अजियो के स्टोर में इंटर किए हो, बहुत सारे सेल्स बॉय होते हैं ना, या सेल्स वुमेन होती है, फिर सेल्स गर्ल होती है, जो आपको अप्रोच करती है कि मैम आप ये ले लो, आप पे सूट करेगा, मैम ये, सर आप ये ले लो, आप पे ये अच्छा लगेगा, सर ये डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, आप इतना का परचेज कर लो तो ये डिस्काउंट्स आपको मिलेंगे। ऐसा आपने फेस करा कभी ना कभी या नहीं? ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, बताओ? अनमोल, सोनू, अरुण, हाँ हुआ है। सुषमा, हुआ है। तो वहां पे सेल्स पर्सन है और वो कब तक अवेलेबल होते हैं? एक पर्टिकुलर टाइम तक, जब तक आपका स्टोर खुला है, राइट? सपोज आप एक अजियो की तरह आपने एक स्टोर ओपन किया, ठीक? स्टोर ओपन करोगे, आपने भी सेल्स बॉय सेल्स गर्ल रखा, वो आपके लिए कब तक काम करेंगे? वर्किंग आवर में, राइट? सपोज आपने 9 to 6 PM तक आपने ओपन करा, तो आपका उसी टाइम तक वो सेल्स पर्सन अवेलेबल होगा। बट सोचो अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट आप उसका बना देते हो, तो क्या वहां पे कोई सेल्स पर्सन है जो आपको बेचने आता है, सर ये ले लो, या मैम ये ले लो, ये ले लो, है क्या? आप सारी चीजें ऑटोमेट कर सकते हो, राइट? आप ऑफर कोड लगा देते हो, बैनर्स लगा देते हो, वही तो आपका सेल्स पर्सन है। आपने देखा या नहीं देखा? नहीं देखा तभी आपको दिखाते हैं सेल्स पर्सन। फ्लिपकार्ट का कहीं स्टोर देखे हो क्या? नहीं ना। देखो, इंटर करो और आपको सेल्स पर्सन दिख जाएंगे, है? यही चीज तो आपको समझाते हैं सेल्स पर्सन, कि सर इतना से स्टार्ट हो रहा है, ये नया प्रोडक्ट है, नया कलेक्शन है, इतने में हो जाएगा सर, है? ये सारी चीजें नहीं है। इसके बाद सेल्स पर्सन क्या करता है, जो देखो, इसके अंदर आप इंटर करो, देखो आपको बता रहा है सर ये सारा ऑफर है जी, है ना? तो ये आपके लिए तो राउंड द क्लॉक सेल्स पर्सन का काम कर रहा है ना, सेल्स पर्सन का। सारा इंफॉर्मेशन आप वेबसाइट पे डाल दिए और आपने एक बार खर्च करा और सबके लिए अवेलेबल है या नहीं है? इसीलिए बोला जाता है कि वेबसाइट के लिए आपको सेल्स पर्सन की नीड नहीं है, और ये आपके लिए राउंड द क्लॉक, लाइक दिन हो या रात हो, आपके लिए अवेलेबल होता है नहीं होता? ऐसा है कि फ्लिपकार्ट आप रात के 3 बजे यूज नहीं कर सकते, बट क्या आप अजियो का स्टोर 3 बजे रात में विजिट कर सकते हो क्या? बताओ। नहीं विजिट कर पाओगे, राइट? क्योंकि वो क्लोज होता है। बट फ्लिपकार्ट आपके लिए अवेलेबल है 24/7, राइट? तो ये डिफरेंस आता है वेबसाइट डेवलपमेंट का, ये यूज है, ठीक है? इसीलिए इसका रिक्वायरमेंट जो है धीरे धीरे डे बाय डे बढ़ते ही जाएगा, कभी घटने नहीं वाला, ठीक है? फिर है वेबसाइट जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करता है आपके बिजनेस के लिए, और आपको टारगेट ऑडियंस के लिए सूट करेगा, साथ ही साथ आपका एक्सपर्टीज और रेपुटेशन शो करेगा ये, साथ ही साथ आपको दुनिया के किसी भी कोने में लेकर के जाएगा, लाइक इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा नहीं कि लाइक फ्लिपकार्ट का वेबसाइट कोई अमेरिका से एक्सेस नहीं कर सकता, या फिर अर्जेंटीना से एक्सेस नहीं कर सकता, या ऑस्ट्रेलिया से एक्सेस नहीं कर सकता। एनी वन कैन एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है? अनटिल और अनलेस इट इज हॉस्टेड ऑन अ प्राइवेट नेटवर्क। फिर है कॉल टू एक्शन इनकरेज द यूजर टू व्यू गिव यू बिजनेस। अभी बोल रहा है कॉल टू एक्शन इनकरेज करता है आपको बिजनेस बढ़ाने में, कैसे? तो कॉल टू एक्शन क्या होता है वो समझते हैं। कॉल टू एक्शन वो सारे बटन्स हैं जो आपको, ये जो ऐड टू कार्ट दिख रहा है और बाय नाउ, ये कॉल टू एक्शन बटन कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि आप इस पर क्लिक करते हो, आपको ये अट्रैक्ट करता है कि आप इस पर एक्शन करो, राइट? आप इस पर क्लिक करो। जो भी बटन्स आपको इस तरीके का दिखता है, वो सारा कॉल टू एक्शन, जैसे शॉप नाउ वाला दिख रहा है ना, ये कॉल टू एक्शन बटन है, ठीक है? तो ये सारा कहलाता है CTA, शॉर्ट फॉर्म में। यहां तक भी कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। वेबसाइट डेवलपमेंट क्यों इंपॉर्टेंस है, वेबसाइट डेवलपमेंट होता क्या है, वो आपने समझा या नहीं समझा? कुछ तो बोलो, एनीवन? काफी साइलेंट ऑडियंस हो यार आप। चलो कोई नहीं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि लाइक वेबसाइट डेवलपमेंट के बाद कि लाइक करियर क्या है इसमें, क्यों सीखे हम? हो सकता है मन में कंफ्यूजन, आप अभी कॉलेज में हो, आप अपना इंपॉर्टेंट टाइम क्यों इसमें वेस्ट करो, राइट? आप अपना टाइम क्यों इसमें इन्वेस्ट करो? तो इसमें करियर जो है वो आपका वेबसाइट डिजाइनर का आता है, फ्रंट एंड डेवलपर का आता है, बैक एंड डेवलपर का आता है, फुल स्टैक डेवलपर का आता है, और इसके साथ साथ बहुत सारे हैं, जैसे सर्वर मैनेजमेंट मैनेजर का हो गया, डेवऑप्स का है। तो बहुत सारे फील्ड है जो आपको एक्सप्लोर करवाएंगे ट्रेनिंग प्रोग्राम के टाइम पे डिटेल में, ठीक है? तो एक एक करके चीज़ों को शॉर्ट रखा है मैंने। उसके बाद है नेक्स्ट चीज़, वो है
कि लाइक वेब डिजाइनर का टर्म मैंने इंट्रोड्यूस करा, तो वेब डिजाइनर और वेब डेवलपर में डिफरेंस क्या है। तो वेब डिजाइनर का काम क्या है, ये डिजाइन करेगा आपका लुक एंड फील ऑफ द वेबसाइट, ठीक है, और ये आपको लेआउट, फॉन्ट, कलर, इमेज कैसा होगा, ओवरऑल ब्रांडिंग कैसे करेंगे, उस पर फोकस करता है। इसका सिर्फ और सिर्फ काम इतना है कि आपके लिए विजुअल मॉकअप क्रिएट कर देगा, दैट्स इट, उसके आगे इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। और ये रेयरली कभी डेवलपमेंट करता है वेबसाइट का, और ये राइट ब्रेन पर्सन के लिए, राइट ब्रेन पर्सन मतलब जिसका दिमाग क्रिएटिव है ना, उसके लिए, ठीक है। क्रिएटिव माइंड ही एक नया अच्छा सा लुक लेकर के आ सकता है। अब जब ये वेबसाइट डिजाइनर जो है डिजाइन रेडी कर देता है ना, फिर आपका वेब डेवलपर का काम आता है। ये क्या करता है कि जो आपको डिजाइन मिला है उसको रियल लाइफ में एग्जीक्यूट करके लेकर के आता है, फिर डेवलप करता है आपके लिए वेबसाइट को और वेब सर्वर पे होस्ट करता है। और किसका काम है, वेब डेवलपर का। इसके पास स्किल क्या क्या होते हैं, इसके पास HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस और भी बहुत सारी चीजें, उसकी स्किल्स इसके पास होती है। और ये लेफ्ट ब्रेन पर्सन के लिए, मतलब जिसका लॉजिकल अप्रोच बढ़िया है, उसके लिए वेब डेवलपर का रोल काफी बढ़िया है। ये चीज समझ में आया नहीं आया, ये बताओ। यस सर। ठीक है, तो ये आई होप कि ये चीजें आपको क्लियरली समझ में आ रही होंगी कि लाइक क्या है, क्यों है, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट आपका समझना होगा आपको कि वेब डेवलपर क्या है, वेब डिजाइनर क्या है, ठीक है, सो दैट कि आप चीजें समझ सको और चीजों को कर सको सही से, ठीक है। नाउ कमिंग टू कि लाइक आपका फ्रंट एंड और बैक एंड, ये दो टर्म आपने सुना होगा अब तक, अगर आपने वेब डेवलपमेंट में कुछ भी रिसर्च करा होगा तो, कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट, ये दोनों क्या है पहले ये समझते हैं, ठीक है। फ्रंट एंड में क्या होता है कि आप मार्कअप एंड वेब लैंग्वेजेस सच एज जैसे कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस, व्यू जेएस, ये सारी चीजें आप सीखते हो, ठीक है। एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट और एजेक्स जिसको बोलते हैं, ये आपको सीखना पड़ता है। आपको स्पेशलाइज्ड होते हैं वेब एडिटिंग सॉफ्टवेयर के लिए, आपको इमेज एडिटिंग आनी चाहिए, आपको एक्सेसिबिलिटी। अब इमेज एडिटिंग का मतलब ये नहीं कि आपको फोटोशॉप पूरे डिटेल में आना चाहिए, नहीं, आप इमेज को क्रॉप कर सको, ट्रांसपेरेंट बना सको, ये बेसिक चीजें आनी चाहिए, जो कि आपका ऑनलाइन टूल से भी काम हो जाता है। फिर एक्सेसिबिलिटी आपको होनी, आपके में स्किल होना चाहिए। क्रॉस ब्राउजर इश्यूज आपको फिक्स करने होंगे। एक्सेसिबिलिटी मतलब कि सर्वर सारे जगह से एक्सेसिबल हो, ये सारी चीजें सेटअप करनी पड़ेगी। साथ ही साथ आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा कि आपने वेबसाइट बनाया तो सर्च इंजन में ऊपर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने वेबसाइट बनाया और 10वें पेज पे लैंड कर रहा है, तो आपने आज तक सेकंड पेज पर गूगल का विजिट करा है क्या? कोई भी चीज आपको ढूंढना हो तो आप क्या करते हो, सर्च करते हो और फर्स्ट या सेकंड लिंक, मैक्स टू मैक्स फोर्थ या फिफ्थ लिंक तक जाते हो, और उतना में ही जो मिलता है उस पर क्लिक करके आप आगे बढ़ जाते हो, राइट। कोई भी 10वें पेज तक नहीं जाता, इनफैक्ट सेकंड पेज तक नहीं जाता, तो 10वां पेज तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का भी जो काम है वो किसका है, फ्रंट एंड वाले का है। बैकएंड वाले का क्या काम है, बैकएंड वाले का काम है कि प्रोग्राम करेंगे और स्क्रिप्ट करेंगे, किसमें, पाइथन में, रूबी ऑन रेल्स, पर्ल, PHP, नोड जेएस, कोर जावा, C++, ये सब में वो बैकएंड का स्क्रिप्टिंग करेंगे। फिर सर्वर का आर्किटेक्चर डिजाइन करना बैकएंड वाले का काम है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन इज द वर्क ऑफ बैकएंड इंजीनियर। देन स्केलेबिलिटी, मतलब कि जैसे जैसे यूजर बढ़ते जाए तो स्केल होना चाहिए आपका वेबसाइट, ये नहीं कि लाइक यूजर ज्यादा है आपका वेबसाइट सो गया IRCTC की तरह, वैसा वेबसाइट नहीं बनाना है, ठीक है। 10 बजे और 11 बजे IRCTC का वेबसाइट देखते हो, बहुत ही ज्यादा फास्ट चलता है, बुलेट ट्रेन से भी फास्ट, राइट। तो वो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, स्केलेबल होना चाहिए आपका वेबसाइट। सिक्योरिटी अच्छे होने चाहिए, ये नहीं पता चला कि कोई भी आपके वेबसाइट को हैक कर लिया, वो नहीं होना चाहिए। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन आपको आना चाहिए, डेटा को वन बेस से दूसरे फॉर्म में कैसे ट्रांसफॉर्म करे। फिर आपको बैकअप रखना पड़ता है। तो ये सारी चीजें थी आपका बैकएंड के लिए। अब है फ्रंट एंड की बारी। फ्रंट एंड किस चीज से बनता है, तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ये तीन कोर चीजें हैं जिसके मिलकर के फ्रंट एंड बनती है। और हमेशा याद रखना कि फ्रंट एंड जो है वो यूजर के ब्राउजर पे चलता है। अब बोलोगे सर रिएक्ट जेएस यूज होता है, व्यू जेएस यूज होता है, पाइथन में जैंगो, फ्लास्क, ये सारी चीजें हैं। तो देखो जो भी चीजें हैं ना, वो सर्वर से रेंडर होने के बाद ना जो रेस्पॉन्स आता है ब्राउजर के पास, वो इसी तीन फॉर्मेट में आता है, HTML, CSS या फिर जावास्क्रिप्ट। और ब्राउजर इसी तीनों को समझता है और उसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। ये याद रखना। फ्रंट एंड में अगर आपको बोले तो 3 लेयर होता है वेबसाइट का। तो अगर इसको मैं सिंपल टर्म में समझाने का ट्राई करूं, तो HTML से आपका स्ट्रक्चर मिलता है। जैसे आप कोई बिल्डिंग बनते हुए देखा होगा आपने, तो पिलर्स देखे आपने उसमें, राइट।
तो पिलर्स का जो काम होता है वो HTML का काम होता है वेबसाइट डेवलपमेंट में। पिलर क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है एक बिल्डिंग को। सिमिलर तरीके से HTML जो है, मार्कअप लैंग्वेज जो है, वो आपको वेबसाइट को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कि किस जगह पे क्या होगा, ठीक है। फिर स्टाइलिंग वाला जो पार्ट है वो CSS और SCSS जो सैस है वो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और वो स्टाइल को प्रोवाइड करता है। जैसे एक इंटीरियर डिजाइनर जो है वो आपके घर का लाइक लुक एंड फील को डिजाइन करते हैं, सिमिलर तरीके से CSS आपके वेबसाइट को लुक एंड फील को डिजाइन करेगा। फिर आपके वेबसाइट में सॉरी बिल्डिंग में बहुत सारे फंक्शनैलिटीज आप ऐड करते हो, जैसे आप लिफ्ट लगवाते हो या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन करवाते हो या पाइपलाइन लगवाते हो वाटर कनेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप क्यों ऐड कर रहे हो, बिहेवियर के लिए, राइट, मतलब कि कोई भी एक्शन परफॉर्म हो सके, ठीक है। तो उसी तरीके से वेबसाइट के ऊपर कब क्या होगा, कैसे कौन सा चीज बिहेव करेगा, लाइक एनिमेशन या फिर बटन क्लिक होने पे क्या होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें का देखभाल जावास्क्रिप्ट करता है, ठीक है ना। पहले जब जावास्क्रिप्ट नहीं था ना, तो लाइक काफी मुश्किल होता था, हर एक रिक्वेस्ट जो है सर्वर के पास जाता था और सर्वर फिर प्रोसेस करता था और फिर वापस आता था फ्रंट एंड पे। तो सोचो मैं इसका एक मतलब डिमेरिट बता रहा हूँ कि क्या था प्रॉब्लम जो बताते हैं, फिर जावास्क्रिप्ट आया, एक स्टोरी है, समझना। क्या होता था ना कि लाइक पहले जब इनिशियल में फेसबुक आया था, तो अगर आप लोगों ने शायद यूज करा हो तो वहां पे एक रिफ्रेश का बटन होता था, रिफ्रेश बटन पे क्लिक करते थे तभी आपका नए अपडेट आते थे, अगर कोई पोस्ट हो या फिर आपके दोस्त ने मैसेज करा है। तो ये सारी चीजें ना रिफ्रेश पे काम करती थी, ऑटोमेटिकली सिंक नहीं होता था, ठीक है। फिर क्या प्रॉब्लम थी कि लाइक आपने कोई फॉर्म फिल करा, जेई मेंस का फॉर्म तो आपने फिल आउट करा होगा और शायद आपको याद हो, माइट भी आप तक शायद फिक्स हुआ नहीं होगा, तो हम लोग के टाइम पे तो था कि कोई भी एरर होता था ना पूरा फॉर्म रीसेट हो जाता था यार, ठीक है, पूरा का पूरा फॉर्म रीसेट हो जाता था और फिर से भरना पड़ता था पूरा चीज। इसका प्रॉब्लम क्या था ना कि ये सारी चीज बैकएंड पे डिसीजन मेकिंग था, ठीक है, फ्रंट एंड पे डिसीजन मेकर नहीं था कोई। तो क्या होता था कि लाइक बैकएंड में गया, सर्वर देखा कि अच्छा ये सारा चीज मिसिंग है, उसने एरर थ्रो कर दिया कि ये एरर है, फिर से फिल करके आओ, एंड दैट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, ठीक है। काफी इरिटेशन होता था यूजर को कि लाइक कैसे क्या करे, हर बारी एक चीज गलत होता, पूरा फॉर्म जो हमने फिल करा था वो गायब, और ऊपर से लंबा लंबा फॉर्म होते थे, ठीक है। जब जावास्क्रिप्ट आया तो क्या हुआ ना कि जब एरर्स आते हैं ना तो आप फ्रंट पे ही चेक कर पाते हो कि लाइक कोई एरर है क्या, अगर एरर है तो आप फ्रंट पे ही बता पाते हो कि हाँ ठीक है यहाँ पे एरर है, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। अगर आपको मैं रियल लाइफ से इसको कनेक्ट करूं तो सोचो आपके कॉलेज में आप कोई परमिशन लेने के लिए जा रहे हो, सपोज आपने एक फॉर्म फिल करा, आपको परमिशन चाहिए, कोई इवेंट आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, ठीक है। आप रजिस्ट्रार के पास आपका फॉर्म पहुंचा, फिर रजिस्ट्रार वहां से कैंसिल करके भेजता आपका फॉर्म कि इसमें ये सारे इन्फॉर्मेशन भी रिक्वायर्ड थे, आपने फिल आउट नहीं करा, ठीक। आप फिर से पूरा भरते हो, फिर आपने भेजा, फिर रजिस्ट्रार कैंसिल करके आपको भेज दिया, ठीक है। अब सोचो इस कंडीशन में रजिस्ट्रार का क्या काम, यही है कि वो आपका फॉर्म चेक करे कि आपने सारा फील्ड भरा या नहीं भरा, या फिर आपका लाइक टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। तो दोनों का लॉस है इस कंडीशन में, रजिस्ट्रार का भी लॉस है कि उसका टाइम वेस्ट हो रहा, प्लस सारी चीजें उसको मैनेज करनी पड़ रही है। आपका लॉस क्या है, आपका लॉस ये है कि लाइक आपका टाइम जा रहा है, राइट, और रजिस्ट्रार के पास झूठ मूठ का सर्वर एंगेजमेंट पड़ रहा है, तो वो और चीजें कब करेगा, रजिस्ट्रार के पास दे हैव ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉलेज, राइट, दे हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, और आप उनको छोटे छोटे कामों में एंगेज करके रखोगे तो कैसा काम चलेगा। सिमिलर तरीके से सर्वर को आप छोटे छोटे चीजों के लिए एंगेज करोगे तो कैसा काम चलेगा, छोटे छोटे चीजों के लिए माइनर लेवल पे उसके सॉल्यूशंस होने चाहिए ना, कि वो वहीं पे सॉर्ट आउट हो जाए, सर्वर तक पहुंचे ही ना। इसलिए जावास्क्रिप्ट रोल में आया, और जब से जावास्क्रिप्ट आया ना तो ये फ्रंट पे ही चेक कर लेता था कोई प्रॉब्लम है क्या, आप चेक कर सकते हो, उसके बाद आप सर्वर के पास भेजते हो। तो अगर कोई क्रूशियल एरर होता तभी सर्वर वहां से एरर थ्रो करेगा। और जावास्क्रिप्ट आपको ये भी फंक्शनलिटी देता है कि अनटिल और अनलेस फॉर्म सेव ना हो जाए तब तक आप डेटा सेव करके रखते हो, मतलब आपका डेटा भागेगा नहीं, वहीं पे रहेगा, ठीक है। तो ये सारा फंक्शनलिटी जो है ना वो जावास्क्रिप्ट के आने के बाद आया, ठीक है। सिमिलर तरीके से सोचो कि रजिस्ट्रार के मतलब के पहले दो तीन लेयर से आपका फॉर्म को गुजरना, तो क्या होगा, आपका जहां भी एरर होगा पहले ही रेक्टिफाई हो जाएगा और आपका टाइम भी बचेगा, राइट। लो लेवल पे रेक्टिफिकेशन हो जाएंगे तो आप इजिली रजिस्ट्रार से परमिशन ले पाओगे, आपका भी टाइम बचेगा, फिर रजिस्ट्रार का भी टाइम बचेगा। तो ये जावास्क्रिप्ट के आने से यही चेंजेस आए वेबसाइट में, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ।
नो सर। ओके, ठीक है। इसके बाद आती बारी बैकएंड पे। बैकएंड का क्या रोल है, राइट? तो बैकएंड का रोल ये है कि लाइक आपका नोड जेएस, एपीआई और डेटाबेस, ये तीन चीज बैकएंड में आता है। नोड जेएस और पीएचपी जो लैंग्वेज है, या फिर पाइथन हो गया या कोई भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, वो आपका इंटरेक्शन करने के लिए हेल्प करता है। किससे इंटरेक्शन? तो डेटाबेस से, क्योंकि बैकएंड में कुछ और नहीं, आप लॉजिकल चीजें लिखते हो, लॉजिक बिल्ड करते हो, आपका डेटाबेस से इंटरेक्शन होता है। लॉजिक्स आप लिखते हो, जैसे साइन अप कराना है, साइन अप में क्या होगा, आप सारे फॉर्म फील्ड चेक करोगे कि सारा रिक्वायर्ड फील्ड अवेलेबल है या नहीं है। फिर आप डेटाबेस को बोलोगे भाई ये चेक करो कि इसका पहले से डेटा एग्जिस्ट करता है क्या, अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो इसको आप सेव कर लो, राइट? यही सारे प्रोसेस होता है। और उसके बीच में जो एपीआई होता है ना, ये पाथवे का काम करता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का समझ लो एक तरीके से। ये डेटा आपके बैकएंड लैंग्वेज में लॉजिक के बाद ये इसको लेकर के जाएगा डेटाबेस तक, और फिर डेटाबेस से अगर कुछ डेटा आना तो ये एपीआई के थ्रू ही आपके पास आएगा। और बैकएंड जो है हमेशा सर्वर पे रन करता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब आपको थ्री लेयर ऑफ बैकएंड अगर मैं समझाऊं रियल लाइफ में से, तो आपने अगर वेयर हाउस का नाम सुना होगा, तो उसको आप समझ सकते हो डेटाबेस जहाँ पे कलेक्शन ऑफ आइटम्स रहते हैं। उसी तरीके से आपका डेटाबेस में कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स रहता है, वो आपका माई एसक्यूएल और मोंगोडीबी है, पोस्टग्रेस एसक्यूएल है, और भी बहुत सारे तरीके के डेटाबेस हैं। अमेजन का खुद का डायनेमो डीबी है, S3 बकेट है, फिर उसी तरीके से गूगल क्लाउड का फायर स्टोर है, रियल टाइम डेटाबेस है। तो इस तरीके से बहुत सारे डेटाबेस अवेलेबल हैं। फिर आती पीएचपी, नोड.जेएस और पाइथन। इसका क्या काम है सर? इसका काम डिसीजन मेकिंग का है, ठीक है, कि लॉजिक्स चेक करने के बाद क्या करना है क्या नहीं करना, ये डिसीजन मेकिंग आप पीएचपी, नोड.जेएस और पाइथन की हेल्प से करते हो। अब एपीआई का क्या काम है? तो एपीआई का काम है डिलीवरी का। वो डेटा आपके पास से लेकर के डेटाबेस तक जाएगा, डेटाबेस से आपके पास तक लेके आएगा, मतलब सर्वर की बात कर रहा हूं तो, और सर्वर से फिर वो यूजर तक के एंड तक ले जाएगा, और यूजर के एंड से सर्वर तक लेकर के आएगा। तो ये काम एपीआई का, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। नो सर। चल, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक सिचुएशन आपको देता हूं कि सोचो आप कि अगर एचटीएमएल नहीं होता तो आपका वेबसाइट कैसा दिखता? अगर एचटीएमएल नहीं होता तो आपका वेबसाइट कैसा दिखता? एचटीएमएल के हेल्प से ना आप हेडिंग को लार्ज कर पाते, पैराग्राफ, लिस्ट, इनपुट फील्ड, ये सारी चीजें स्ट्रक्चर दे पाते। अगर नहीं होता तो, अगर पिलर्स का इन्वेंशन नहीं होता तो आज इतने ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग बन पाते क्या? नहीं बन पाते। तो ऐसा दिखता। क्या ये अच्छा लग रहा है आपको? नहीं। कौन सा बेहतर लग रहा है, ये या ये? हम्म, वैसे आपको ये पसंद आ रहा होगा। तो ये आपका डिफरेंस है एचटीएमएल के आने से। अब एचटीएमएल क्या है वो समझते हैं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब इसको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, वो समझने का ट्राई करते हैं। देखो हाइपर, अगर आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आपसे मैं पूछूं कि हाइपर आप किस कंडीशन को आप बोलते हो, तो कोई भी ह्यूमन बीइंग अगर एक्साइटेड स्टेट में हो, आइदर वो एंग्री हो या फिर कुछ ज्यादा ही खुश हो, उसको आप हाइपर स्टेट बोलते हो, राइट? नॉर्मल मोड में ना हो, ठीक है। सिमिलर तरीके से आपका जो वेबसाइट है ना, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट होते हैं जो क्लिक करोगे तो कुछ ना कुछ आपको एक्शन परफॉर्म करेगा। जैसे लिंक हो गया, उस पर क्लिक करोगे तो वो कहीं और चला जाता है, राइट? तो ये उससे रिलेटेड है हाइपर टेक्स्ट। मतलब टेक्स्ट को आप कर पा रहे हो। मार्कअप मतलब होता है कि अलग अलग तरीके से मार्किंग करना, उसको अलग अलग तरीके से असेंबल करना, या फिर उसको अलग लुक देना। तो वो उस तरीके का लैंग्वेज को हम लोग एचटीएमएल बोलते हैं, ठीक है। और एचटीएमएल की हेल्प से आप देखते हो सिंपल टेक्स्ट को अलग अलग लुक में आप डिजाइन कर पाते हो, ठीक है। अब आपको मैं ब्रेक दे रहा हूँ, काफी लंबा हो गया सेशन, ठीक है। तो मैं सोच रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था कि 2 घंटे में खत्म होगा, बट ये जल्दी खत्म हो गया। सो वी विल कनेक्ट नाउ एट टू आफ्टर ब्रेक। 2 बजे हम लोग कनेक्ट करेंगे, एंड आगे आपको एचटीएमएल पे बेसिक्स पे हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। नहीं। नहीं है तो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में ही बताऊंगा कि लाइक इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या क्या स्किल्स आप सीखने वाले हो, क्या प्राइसिंग होने वाला, पेमेंट स्ट्रक्चर क्या होगा,
आपको और एडिशनल में क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, ये सारी चीजें मैं नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगा, ठीक है। सो आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग।